नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी आरकेबी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियाल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को पूरे नेशन नाउ की टीम की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। So Pradeep ji, wonderful news yesterday. The RCB Royal Challengers Bangalore Yes. won the IPL after 18 years. Virat Kohli finally got his hands on the trophy, and very sad news today from the Chinnaswamy Stadium in Bangalore. 10 people are believed to have died because of a stampede, which took place because of the celebrations, because the team was to be felicitated over there in the Chinnaswamy Stadium. That is terrible. What has happened is absolutely awful. Absolutely. I mean, there was the women who have died in that. 4 to 5 women. Yes, that's right. People who died. We had the same problem in Mumbai, but there were no deaths. Where cricket is concerned, I think you have to be very, very careful about organizing. I think Mumbai has learnt it very well. वो अच्छा इधर भी stadium में था, but we had all the programs at Wankhede Stadium, and it was done so well. Whether it's Rohit Sharma or whatever you call it, it was very well planned and well. This kind of frenzy where people were trying to break the gates, push the gates and get into the stadium, that kind of a scene didn't take place. और वो जो T20 वर्ल्ड कप जब हम लोग जीत कर आए हैं तो ओपन 10 में सबको लेकर के गए वगैरह वगैरह वगैरह, that was done very nicely. In spite of the fact that some people really got dehydrated and they had to be taken to the hospital, but nobody died and nobody got injured. Yeah, we saw a footage of people pushing the gate. Now थोड़ा अगर पुलिस बंदोबस्त वहाँ पर होता, understanding the gravity, because cricket crazy fans of Bangalore, they are going to come out in whole numbers, full numbers. So I think police bandobast, there was a lack of police, because everywhere the footage is there. हम लोग देख ही रहे कि वो गेट को कैसे धक्का मार के, and there were hardly any police officials there. We couldn't see anybody. None of them. There was only local security of the stadium out there. और उनको कौन सुनता बेचारों को? कौन सुनेगा उनको? कोई नहीं सुनता. In fact, there should have been a very, very big police presence over here. The crowds should have been controlled and so on and so forth, but very sad. Really and truly sad. A very, very tragic event which has put a pall of gloom over the great victory that the Royal Challengers Bangalore won yesterday. But what a match, what a fantastic match. And Shashank Singh of Punjab Kings 11 almost won it for Punjab. Just a matter of 106. You know, he scored how many? 22 runs in 4 balls. Yes. 6-4, 1-4 and 3 sixes. Just a matter of 1-6 or 2-4. One ball, which loose ball, which he could have hit all over cross. Yeah, but there in front of him was Josh Hazlewood, the Australian, one of the best bowlers in the world at the moment. But it was great to watch, and great to watch. I would say great for Virat Kohli, fantastic for Shreyas Iyer. Let's not forget our own Krunal Pandya. He won the Man of the Match award again, the second time that he's won it in a final. And let's not forget Shashank Singh, as I mentioned, and most importantly, let's not forget Preeti Zinta. For the last 18 years, as the owner of Punjab Kings 11, she's been there. She's been there at every match. बिल्कुल. हर मैच में प्रीति जिंटा दिखती हैं. Yes. भले जीतो या हारो, अपनी टीम के साथ खड़ी रहती हैं. Yes. और जिस उत्साह से और जिस खुशी से वो सारी की सारी टीम को मुबारकबाद देती हैं या कमिसरेट करती हैं उनके साथ जब वो हारते हैं. I mean, that's amazing. She should get an award. There should be a special award for Preeti Zinta. Yes. Very frankly. Shreyas Iyer, I mean, she's the real mascot of the IPL. Shreyas Iyer did very well, and as we were expecting, by the way, कि जैसे ही Shreyas Iyer out हुए for hardly any score, तब मालूम पड़ गया था कि यार अब पंजाब का जीतना जरा मुश्किल है. तो but Virat Kohli deserved it. India, he was a sentimental favorite, and this time really, this is the first time I've seen Pradeep Saab ke even the losers, that is Punjab Kings 11, were celebrating along with the Royal Challengers Bangalore. IPL is all about that, I think. IPL is just everybody coming together, doing their best, and then partying. That's it. Getting together and partying. Or everybody was so happy for Virat Kohli. सबसे बड़ी बात ये. Yes. बिल्कुल. Really and truly lovely. Now to come back to politics and to come back to everything else. प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात अभी यही हुई कि राहुल गांधी साहब को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कि भैया आपने क्या बोल दिया इंडियन आर्मी के बारे में. Exactly. कि इंडियन आर्मी इज बीइंग बीटन अप बाय द चाइनीज. कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? भारत छोड़ो यात्रा में थे, बट जी and the things are come up again because बीजेपी ने फिर उनको एक्यूज किया कि आप
मोदी सरेंडर, आप सरेंडर मोदी, नरेंद्र सरेंडर, जब आप ऐसे बात करते हो तो it reflects on the Indian army, the armed forces who have done so much for the country. And the Not way- just on the armed forces, Yes, Pradeep ji, yes. it reflects on the country. It reflects on the country. सीधी सादी बात है। जिस प्रकार से, I mean, here you got the CDS in World Forum with Singapore. He talked about how things were and how we came back and hit them, and we hit them so deep within, and they were really rattled. And then the cry for ceasefire came from there. And now you got the CDS telling you all a complete description of how things are, and you still say that Surrender Modi. Surrender Modi. सरेंडर काहे का भाई? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप देखिए ना प्रदीप जी, 31 एयरपोर्ट जो थे वो बंद हो गए। Exactly. सीधी बात है। Yes, yes, yes. और उसके अलावा क्या हुआ, आपकी पूरी इकोनॉमी जो थी उसकी ऐसी की तैसी हो गई, तहस-नहस हो गई। तीसरा क्या था कि जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, जहां पर जो टूरिज्म था पूरा का पूरा बंद हो गया। नाउ टूरिस्ट हैव स्टार्टेड फ्लॉकिंग बैक टू जम्मू एंड Yes. कश्मीर अगेन। व्हाट डिड यू वांट? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द कांग्रेस वांट्स। एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, राहुल गांधी really has his heart in the right place. I don't believe that Rahul Gandhi could have said this on his own. He must have been briefed very, very wrongly. सीधी सादी बात है। उनके आसपास जो लोग हैं, सलाहकार जो उनके हैं, मतलब this is terrible. But I believe whatever, the war stopped at the right time. भले मोदी साहब कह रहे हैं कि the war is not over, but I believe after striking the terror pads and after striking the airports, this was the right time that India's favor that we stop the war. As Shashi Tharoor clearly says that mediation, India never required a mediation. India never wanted a mediation, never required a mediation. Pakistan required a mediation. Pakistan required a mediation, so they called, and India thought it And they called twice. twice. The DGMO called twice. Our DGMO first was attending a wedding. The second time he was very busy, and the third time he said, "हाँ भी बोलो, क्या चाहिए? आगे मतलब तुम्हारे ऊपर है। You want to stop? We are willing to stop." ऐसी क्या बात है? और तीसरी चीज क्या है प्रदीप जी? सबसे बड़ी मतलब वाहियात बात क्या है कि पाकिस्तानी इतने उछल रहे हैं, 5 हमने एयरक्राफ्ट गिरा दिए, 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए। अरे भाई, तुम्हारा खुद का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, अजरबैजान में जाकर के कहता है फजर की नमाज के बाद, यानी फजर मॉर्निंग होती है, अर्ली मॉर्निंग की नमाज को फजर बोलते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं। और मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान में देखिए 25 करोड़ मुसलमान हैं, 20 से 25 करोड़ मुसलमान हैं। जैसे आप अपेक्षा रखते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं के बारे में जानना चाहिए, आपको भी जितने भी हिंदू हैं, जितने भी अलग मजहब के लोग हैं, आपको इस्लाम के बारे में भी जानना चाहिए। बिकॉज देयर आर 25 करोड़ मुस्लिम्स ओवर हियर इन इंडिया। तो फजर की नमाज के बाद वो खुद बोलते हैं as we were about to hit, as we were about to retaliate against our enemy, they hit us on all our bases with the BrahMos missile. This is what he says. Exactly. अरे तुम्हारी जब एयर बेसिस तुम खुद एडमिट कर रहे हो ब्राह्मोस मिसाइल ने नष्ट भ्रष्ट कर दिए, Yes, तो yes. तुम्हारे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कहां से किए? मतलब व्हाट, यू टेलीपोर्टेड अप और व्हाट? This is what the Avengers? I mean, what's going on over here? Anyway, लेकिन पाकिस्तान का तो शुरू से रहा है प्रदीप। 1947 में पाकिस्तान बना, 1948 में अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानीज दे वन 100 ओलंपिक मेडल्स, इन 1952 they won 150 gold medals, in 1956 they won everything. And the first Muslim, as per I think Muhammad Ali Jinnah said, the first Muslim is Muhammad bin Qasim. Yes. The first person who invaded Sindh is their first leader. Yes. Isn't that terrible? मतलब आप और तो और छोड़िए, ये भाई मोहम्मद बिन कासिम है जो भेजा गया था, आपको मालूम है प्रदीप जी? बिल्कुल, बिल्कुल। इसके पीछे जरा स्टोरी अलग है। Yes. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the prophet Muhammad, may peace be upon him, his family had taken refuge in India. He was sent to finish them off. ये आपका हीरो है। मतलब आप The कैसे first- लोग हो यार, कैसे लोग हो यार? कैद आजम, उनके जो कैद आजम है वो The कहता है pork कि eating, history pork eating, whiskey drinking कायदे आजम जिसने आज तक जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, ये वो है। खैर, anyway, we'll talk about that after some time. At the moment with us, I think we are accompanying, we have a few guests with us. Let's see who we've got. Since nobody in the newsroom is willing to tell me whom we have got, can we go to our guests, please, if we have any? Right. सुशील व्यास जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। गोपाल तिवारी जी, जय सिया राम, कैसे हैं? जय सिया राम सर, जय सिया राम। जय हिंद, भारत माता की जय है। आपने सिर्फ श्री राम नहीं बोला, जय सिया राम। मैं हमेशा जय सिया राम चल रहे हैं। सर, हम बचपन से जय सिया यही राम, हमारी संस्कृति है सर। सर हम बचपन से जय सिया राम बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, भारतीय विद्या भवन में, सीता जी को अलग मत कीजिए। सर मैं भारतीय विद्या भवन में पढ़ा हूं। I was a student of Sanskrit right till the 12th standard. 12वीं जमात तक हम लोगों ने संस्कृत पढ़ी है सर। Let's be very clear. सीता जी के बगैर राम अधूरे हैं, याद रख लीजिए।
जी, शिव पार्वती, पार्वती माँ के बगैर शिव जी अधूरे हैं, श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं। जैसे राधा जी खुद बोलती हैं श्री कृष्ण को कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तेरा नाम कोई अकेला नहीं लेगा। जब वो स्वर्ग में मिलते हैं राधा जी से, तो राधा जी उनको यही बोलती हैं कि तेरा नाम कोई अलग से नहीं लेगा, पहले राधा का नाम लेगा फिर तेरा नाम लेगा। तो इसलिए राधा कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण राधा नहीं बोलते। सही है सर, ये भारत की परंपरा है। और भाई मैं आपको भी ये बता दूं, हो सकता है गोपाल तिवारी जी आपको पसंद ना आए, मोदी जी भी जय श्री राम नहीं बोलते यार। कमाल है, आपको आप कैसे ब्लेम कर सकते हो? मोदी जी जय श्री राम नहीं बोलते। हमको नहीं पसंद है। रामायण महाभारत तो कांग्रेस ने, राजू जी ने बताई घर घर सर। जी, घर घर बताइए, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा सर। सर जो है सो है सर। हाउ कैन वी आर्ग्यू विथ फैक्ट्स? फैक्ट्स के साथ कोई आर्ग्यू कर सकता है क्या? राजीव गांधी जी ने ही टुक द डिसीजन कि रामायण दिखाई जाएगी हर संडे को सुबह, और दिखाई गई। उसके बाद महाभारत आई, और उसके बाद उत्तर रामायण भी दिखाई गई। सीधी बात है। और एक और बताऊं सर, आई वॉज द बेनिफिशियरी, लेट मी से इट राइट अवे। सुशील व्यास जी, शायद आपको मालूम नहीं है, जो सबसे पहला प्राइवेट न्यूज प्रोग्राम गिवन आउट बाय, कॉन्ट्रैक्टेड बाय दूरदर्शन by Rajiv Gandhi ji, I was part of that. It was called Newsline. I was part of that. The entire Punjab coverage and Bihar coverage was by me. By the way, ये भी आपको बता दूं. So I've been a beneficiary of that. ऐसी बात नहीं है. लेकिन सर, तो ये तो राजीव गांधी जी की बात हो गई. संसद का टेलीकास्ट भी कांग्रेस के काल में ही हुआ सर. हुआ. संसद का हुआ. मानना सर, जो है सो है, उसमें क्या है? तो अभी कांग्रेस को क्या हो गया सर? ये तो बात पुरानी हो गई ना. अभी राहुल गांधी जी को अभी हाईकोर्ट ने जाकर के उनको फटकार लगाई है कि भाई फौज के खिलाफ आप क्यों बोलते हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में अब किसने उनको क्या बता दिया? उन्होंने ये कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो चाइनीज सोल्जर्स हैं भारतीय फौजियों को पीट रहे हैं। सर आप ये बताइए, अब गोपाल तिवारी जी, व्हाई आरंट यू देयर? आप जैसे किसी शख्स को होना चाहिए राहुल गांधी जी के आसपास उनको एडवाइस करने के लिए। अब ये क्या है सर? अब आप बताएं प्लीज। गोपाल तिवारी जी, अब आप बोलें प्लीज। सर, देश के प्रधानमंत्री जब एक अलग स्टेटमेंट देते हैं चीन के बारे में, ना कोई घुसा है ना कोई आया है, और उसी समय राजनाथ सिंह और जयशंकर जी पार्लियामेंट में अलग स्टेटमेंट देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं चाइनीज फिंगर 4 टू फिंगर 8 पे घुस गया है। उस समय हमारे 20 निहत्थे जवान मारे गए सर। वहां उनके पास कोई हथियार, औजार, बंदूक कुछ नहीं था। ये दुख की बात नहीं क्या सर? 4000 स्क्वायर किलोमीटर अगर हमारी चीन जमीन लेता है और उसके बारे में आप बात तक नहीं करते हो, तो मतलब क्या सर? क्या मतलब ये कोई अपने एंसेस्टर पिताजी और दादाजी के तरफ से सत्ता थोड़ी आई आपको? ये तो देश की जनता हर 5 साल के लिए अकाउंटेबिलिटी देख के आपको चुन के देती है। जब आप पहले बताते हो चीन की तरफ लाल आग दिखाएंगे, क्या होता? सरेंडर होते हो। जब आप बताते हो बेरोजगारी कम करेंगे, तो क्या होता है? 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो सरेंडर होते हो। जब आप कहते हो कि काला धन लाएंगे, तो क्या हुआ? सरेंडर होते हो। हर कोई बात जो आप करते हो, आप खुद का स्टेटमेंट 10-11 साल में जो आपने बात कही, वो कौन सा साबित हुआ ये तो बताइए। 11 साल में एक अकाउंटेबिलिटी के तौर पे एक प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले सकते, तो इससे और गोपाल जी मतलब शर्मनाक बात क्या है सर? गोपाल जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज भी कहा, ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर। नो वाटर फॉर टेरर स्पॉन्सर्स, जो आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हैं उनको पानी नहीं मिलेगा। इसका इफेक्ट पानी में पाकिस्तान में हुआ कि 21% डेफिसिट वाटर दे हैव रिसीव्ड 21। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अब चेनाब को भी टाइट कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक एक प्रोएक्टिव स्टांस जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लिया है, इट इज रियली स्क्वीजिंग। आपने पहले 9 जो टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा दिया, 11 बेसिस को अटैक दिया, पानी डिप्लोमेसी से आप इनको स्क्वीज करो। डोंट यू थिंक दिस इज वंडरफुल फॉर द नेशन? गोपाल तिवारी जी। सर ये तो बात अभी मोदी जी के राज में पहले भी कही थी उन्होंने, जब 2000 ये अपना 2019 अटैक जब हुआ था 2016-18 के बीच में, उस समय तभी उन्होंने कहा था ना, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो हमने तो सपोर्ट किया। क्या हुआ?
अरे सर, आपको पता है कि जब कारगिल वार हुआ तब इतने सैकड़ों हजारों सैनिक जब घुस के आते थे, ये बात चलने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए के समय 2004 से 14 तक 80% फेंसिंग का, इंडो पाक फेंसिंग का काम पूरा हुआ। हार्डली 20% काम रहा था। इन्होंने कहा कि हम मॉडर्न फेंसिंग करेंगे। कपिल सिब्बल जी का सवाल है सर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कपिल सिब्बल जी ऑन रिकॉर्ड है। और 20% का जो फेंसिंग था वो 16 से 18 तक उसकी सहूलियत बढ़ा दी, 18 से 23 तक बढ़ा दी, और 23 के बाद भी कंप्लीट नहीं हुआ तो 25 तक उसका अभी नहीं सर, अभी नहीं, भी आप वो गलत बात बोल रहे नहीं कर पाए कि उसका करेक्शन कर दूं, नहीं हुआ कंप्लीट, करेक्शन कर ये दूं, सब बात करेक्शन कर दूं। गोपाल तिवारी जी, आप गलत बोल हाँ। रहे हैं, आप गवर्नमेंट को ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। तो अभी फेंसिंग का क्या हाल है किसी को मालूम नहीं है। लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली, देयर इज नो इंफॉर्मेशन कमिंग विद रिगार्ड टू व्हाटएवर इज द फेंसिंग दैट वाज रिमेनिंग। उसका क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं है अभी। तो यही तो सवाल कपिल सिब्बल जी उठा रहे हैं ना सर। करेक्ट, यही तो मैं बात कर सर, रहा सवाल है कि यू आर राइट, नहीं हुआ, नहीं अभी तक बताया नहीं ना उन्होंने। सर हुआ ही नहीं है, बताना चाहिए था सर, नहीं हुआ। अगर आप सेशन लेते हो, तो ये सब बातों पे चर्चा होती है। जैसा उस समय यूनानिमसली रिजोल्यूशन हुआ था पाक ऑक्युपाइड का, और कश्मीर लेंगे 1994 में नरसिंह राव जी थे तब। ये तो बातें सर, इट इज प्रोटोकॉल और प्रोसीजर ऑफ डेमोक्रेसी सर। ये अकाउंटेबिलिटी चाहिए। आप जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या उनके दुश्मन नहीं है ना, उनको भी तो जनता ने चुन के दिया है। वो कहें ऊपर से टपके क्या, ये तो बात समझनी चाहिए। इसीलिए तो कुछ मैच्योरिटी चाहिए, कोई ढंग से सवाल जवाब और कोई सहयोग का आदान प्रदान करना चाहिए। जैसे भी हमने 22 तारीख को रात को तुरंत बता दिया, और सब प्रवक्ताओं को बिल्कुल कड़ी सख्त ताकीद दी उन्होंने कि कोई बात नहीं करेगा 4 दिन के लिए। 3-4 यहाँ जब हमने पूरा सपोर्ट किया था उनको, तो उसके बाद भी वो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आते, बिहार चले जाते, कहीं और चले जाते, मतलब क्या। So sir, what do you think? गोपाल तिवारी जी, before I go to सुशील व्यास जी, आपसे जानना चाहता हूं तो अभी तक जो कुछ भी हुआ है, जिस प्रकार आज की तारीख में जो नई इंफॉर्मेशन अभी आ रही है, अब ये आधिकारिक तौर पर नहीं आई है, लेट्स बी वेरी क्लियर। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूज चैनल्स जिन्होंने कहा है कि उनको कोई पाकिस्तान का डॉसियर मिला है जिसमें पाकिस्तान ने एडमिट किया कि हम लोग तो पेशावर तक पहुंच गए, पेशावर तक को अटैक कर दिया। ना आई डोंट नो, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, क्योंकि हमारे डीजीएमओ यानी डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उन्होंने ये बात आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। ये कहा गया है कि 11 एयर बेसिस तो हमने मारी, विच इज ऑफिशियल, 8 और भी डैमेज की हैं। इसकी कोई आधिकारिक तौर पे भारत की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी तक आपको क्या लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, वॉज इट सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल? आप बताएं सर। सर उसका तो सक्सेसफुल तो उसी समय हुआ था जब हमारे लोगों ने उनके जो आतंकी टेररिस्ट जो थे वो ध्वस्त कर दिए। हम कहना ये चाहते हैं कि आप मोदी जी ने जो देश को संबोधित किया उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा और हमने फिर उसके ऊपर विश्वास रखा। अरे क्यों विश्वास करते हो आप? एक तरफ ट्रम्प जो बोलते हैं बार बार, 11 बार बोला सर अभी तक, और वहां के अमेरिका के हाईकोर्ट में उन्होंने लिखित एफिडेविट में लिख के दिया है कि हमारी वजह से, ट्रम्प की वजह से सीज फायर हुआ है। तो उनके ऑब्लिगेशन में हम कब तक रहेंगे सर? 2014 के बाद हमने ईरान इराक से जो इंडियन करेंसी से हम क्रूड ऑयल परचेस कर सकते थे, उनके ही दबाव में हमने चुप करके और बैठा, और हमारा खर्चा भी ज्यादा हो रहा है। इंडियन करेंसी से हमको इराक ईरान से क्रूड ऑयल मिलता था, बिकॉज ऑफ ओनली अमेरिका, और अमेरिका का प्रेशर में हम वो नहीं ले पा रहे। कब तक ये किसकी कठपुतली बन के हम कब तक रहेंगे? हमारा खुद का कुछ वजूद है क्या? नहीं। अगर कोई इंटरनेशनल कोई लेवल पे बोलते हैं कि मैंने वो वार सीज फायर करवाया, तो हम मतलब हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम क्या सेल्फ उतने सक्षम है क्या? नहीं। राइट, लेट्स गो टू व्यास साहब। और सबसे बड़ी बात, आप 11 साल में सर 151 या 52 कंट्री में आप सफर कर चुके हो। हजारों करोड़ ये देश का टैक्स पेयर का पैसा उसमें खर्चा हुआ है, और आज के तरह मतलब समय में आपके तरफ से कोई एक देश
एक देश सपोर्ट और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाता, जबकि उनकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से 3-3, 4-4 देश ने ये किया। आप बोलते हो पानी रुकवा देंगे, बिल्कुल सही, उस समय भी आपने बोला था। लेकिन चाइना अगर आपको बोलती है, आपको चाइना वहां पे बोलती कि ब्रह्मपुत्रा का पानी हम रुकवा देंगे, आप ख्याल, आप खबरदार है, पाकिस्तान को आप बोलते हो तो। बट आई थिंक बीजेपी ने क्लैरिफाई किया था कि वहां पर पानी रोकेंगे, कोई नहीं क्या चाइना रोकेंगे पानी तो अच्छा रहेगा इस देश के लिए, बिकॉज जो बाढ़ आ रहे हैं वो बाढ़ थोड़ा कम हो जाएगा। बिकॉज Let me tell you, in from ब्रह्मपुत्रा, गोपाल तिवारी जी, चर्चा भी होनी चाहिए ना सर, गोपाल तिवारी जी, होनी चाहिए, संसद गोपाल में तिवारी बात जी, होनी चाहिए। अगर चाइना ने ये कहा कि नहीं, गोपाल तिवारी जी, चाइना ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा। इट इज ऑन द रिकॉर्ड। नो सर, तो अगर हम सर ऑफिशियली चाइना ने कुछ नहीं कहा है। पुतली बन सर आपसे क्षमा मांगते हुए, आधिकारिक तौर पर चाइना ने कुछ नहीं कहा है। चाइना के कुछ सिक्योरिटी एनालिस्ट ने कहा है कि डोंट डू अनटू अदर्स व्हाट यू डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू डू टू यू। दिस इज व्हाट विक्टर गाओ, इनडायरेक्टली तो वही कहना हुआ ना, आखिर बट तो चाइना सर अगर आप बात सुने, उनकी तरफ से सर आपकी बात सुनी, अब मेरी भी बात सुन लें, बड़ी मेहरबानी होगी सर, प्लीज। आपकी बात सुनी मैंने, और आपने बहुत कुछ ठीक भी बोला है। ब्रह्मपुत्रा का सिर्फ 25 से 30% पानी सांगपो रिवर जो है उससे ओरिजिनेट होता है। बाकी जो पानी आता है 70% सर वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मेघालय में उत्पन्न होता है। देयर आर 9 ट्रिब्यूटरीज which feed the Brahmaputra, which originate in India, sir. In fact, Hemanta Biswa Sarma, the Assam Chief Minister, formerly your colleague in the Congress, he has said कि अगर आप 25 या 30% पानी वहां पे रोक देते हैं तो हमारा भला हो जाएगा। जो 1-1.5 लाख लोगों को हमें रेस्क्यू और रिहेबिलिटेट करना पड़ता है हर साल, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। दिस इज व्हाट ही सेड, वी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इवन एन इंच अगर वो ब्रह्मपुत्रा का पानी रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज जरूर होगी, गोपाल तिवारी जी सुन लीजिए, एट द मोमेंट दे हैव अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन on the Sangpo, which we call the Brahmaputra, which is a run of the river dam. उसको डैम करने के लिए चाइना विल हैव टू स्पेंड अनदर $2 billion, और उसमें 5 साल और लग जाएंगे उनको, और चाइना की खुद की ऐसी की तैसी हो जाएगी। नाउ लेट मी गो अक्रॉस टू सुशील व्यास साहब। सुशील व्यास साहब, अभी तक हमारी फौज ने और हमारी सरकार ने जो कुछ भी क्लेम किया है, एनीथिंग दैट वी हैव क्लेम्ड, हर चीज को सर, हर चीज को, कोई भी इसी के बारे में सर प्लीज सेंटेंस कहूं मैं सर, एक सेकंड सर, हाँ बोलिए सर, ओनली 1 सेंटेंस बोलिए। हाँ 1 सेकंड। इसी के साथ चाइना, मैं उसके तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, चाइना कॉरिडोर बना रहा है सर, बांग्लादेश और नेपाल को हेल्प करके बांग्लादेश के एयरपोर्ट वहां जो बन रहे हैं, जो देश हमारे साथ थे, हमारे ऑब्लिगेशन में थे, आज वो चाइना के साथ में सर वी डील विद इट, सर वी शैल डील विद इट, सर देयर इज अ प्लान इन प्लेस फॉर इट, वी शैल डील विद इट, नॉट टू वरी। वो जो चिकन नेक की बात कर रहे हैं ना, बांग्लादेश इटसेल्फ हैज अबाउट 6 चिकन नेक्स व्हिच वी विल टेक ओवर फ्रॉम त्रिपुरा। The coast is just about 10 kilometers. We just need to take over 10 kilometers of Bangladesh territory. We'll do that also. But that's a separate issue. सुशील व्यास जी, अभी तक जो भी हमारी फौज ने क्लेम किया है, कुछ भी, anything, it is backed by evidence. हर चीज में सर आप देखें, भारतीय फौज ने, भले वो जो पहले हमारी जो थी, क्या नाम है उनका, सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी जी, और हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और उसके बाद जो हमारे तीनों डीजीएमओ, सर सैटेलाइट इमेजेस विद डेट स्टैंप, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, एक एक चीज दिखाई है हमने कि पहले ये एयरबेस ऐसी थी, हमारे हिट करने के बाद ऐसी हुई है। और तो और छोड़िए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब अजरबैजान में थे, उनकी आप स्पीच खुद सुन लें, उन्होंने खुद कहा है, फजर की नमाज के बाद हम लोग तैयार थे टू गिव अ फिटिंग रिप्लाई अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर फील्ड मार्शल। Our field marshal, Pakistan is the only country which promotes people for defeats. Our field marshal, क्या नाम है उनका सर, आसिम मुनीर साहब की लीडरशिप में, और उसके पहले we were hit by BrahMos missiles, all our airfields were destroyed। तो अगर उनके एयरफील्ड डिस्ट्रॉय हो गए सर, तो उन्होंने हिंदुस्तान के जेट्स कहां से गिराए? एनीवे, सुशील व्यास जी अब आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ ऑपरेशन सिंदूर? और अभी जो नई खबर आ रही है उसमें तो ये मालूम पड़ रहा है कि भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया है,
जिसका विवरण अभी तक बाहर नहीं आया है सर। रियली प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। आई थिंक बोथ ऑफ यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस सर। अब आप बताएं सर। सुशील व्यास बजाज जी, निश्चित रूप से हमारी आर्म फोर्सेस ने जो भी कारनामा दिखाया उन 3-4 दिनों के दौरान, हर भारतीय का सर जो है अभिमान से ऊपर होता है। और जो आपने कहा कि जो कुछ भी उन्होंने क्लेम किया था, हमारे तमाम 3 ऑफिसरों का जाम जो आपने नाम लिया, और उसके बाद लगातार 2 दिन तक डीजीएमओ तीनों सेनाओं के खुद आए और भारत और विश्व के सामने अपनी बात को रखा। और बाद में आपने जैसे कहा बिफोर एंड आफ्टर वाली जो बात आपने कही कि कोई ये न पूछे कि हुआ था या नहीं हुआ था, तो ये भाई सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये पहले था ये अब है, तो आपको प्रश्नवाचक प्रश्न लगाने का कहीं जगह है नहीं। तो हमारी सेनाओं ने बड़ी गौरवमयी स्थिति में जिसको कहा जाए कि फिटिंग रिप्लाई अंग्रेजी में जिसको कहते हैं हमने दिया है, और जिसके लिए हर भारतीय को अपना सर उठा करके सीना तान के कहना चाहिए ये हमारी उपलब्धि है। व्यास जी, श्रीकांत शिंदे जी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी वॉज अ पार्ट ऑफ द डेलीगेशन, और उन्होंने कहा कि जहां जहां श्रीकांत जी गए वहां वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इंपैक्ट जो थे, लोगों के जो गवर्नमेंट थे उनको कितने रेस्पेक्ट करते थे, जहां जहां श्रीकांत शिंदे जी गए प्राइम मिनिस्टर मोदी का रेस्पेक्ट वो ही कुड सी इट, ही कुड फील इट। एंड ही सेज राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, जो आरोप जिस प्रकार से कर रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर, मोदी सरेंडर, he says it is just to be believed. And you got Supriya Sule also saying Prime Minister's zero tolerance policy towards terror is absolutely laudable. So what is the problem? एक इंडिया अलायंस बार बार जिस प्रकार से आलोचना कर रहे हैं सुशील व्यास जी। नामबिहार जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो 59 सांसद 7 अलग अलग दलों में विभक्त होकर के विश्व के कोने कोने में भारत के तरफ से गए, उनकी बात रखने के लिए, पूरे विश्व को ये बताने के लिए कि हमने आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम किसी के देश के या वहाँ की जनता के खिलाफ नहीं थे। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हमने ये कदम हमें उठाना पड़ा, और उसमें चाहे हमारे दल के नेता श्रीकांत शिंदे जी जो एक 7 दल में से एक दल के नेता थे, चाहे वो थरूर जी हैं, चाहे सुप्रिया सुले जी हैं, तमाम वो ओवैसी जी हो, मैं देखिए सब के सब उस समय जब बाहर गए तो नौ किसी दल विशेष के नहीं थे, वो एक स्वाभिमानी भारतीय थे और भारत की गौरव की कथा और गाथा वहां पर विश्व के सामने रखने के लिए गए थे। और किन कठिन परिस्थितियों में भारत को ये कदम उठाने पड़े आतंकवाद के खिलाफ, ये बात विश्व के पटल पर रखने के लिए सारे लोग गए, उसमें कहीं दल विशेष की बात थी नहीं। और श्रीकांत शिंदे जी ने भी जो कहा, एक गौरवमय और अभिमानी भारत के भारतीय के रूप में कहा, उस समय वो शिवसेना के हैं, इस बात का हमें पार्टी के सदस्य होने के नाते गौरव है, लेकिन जब वो उन्होंने बात विदेश की धरती पे कही और वापस आके उन्होंने कहा, वो एक भारतीय होने के नाते कही, इस बात का हमें गौरव है कि पूरे विश्व में हमारे नेता वर्तमान जो मोदी जी हैं उनके नेतृत्व का, और जो भारत ने जो जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है आतंकवाद की घटनाओं का, पहलगाम में जो हमारी दर्दनाक हत्याएं हुई 26 हमारे भारतीयों की, उसका जो जवाब दिया गया पूरे विश्व ने उसको सराहा है। और विश्व ने उसको कहा है कि सही कदम था भारत के द्वारा कि नागरिक नुकसान किए बिना आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना, ये एक बिल्कुल जवाब सही तरीके का था। और यही बात रखने के लिए तमाम ये हमारे 59 सांसद 7 दलों में विभिन्न विश्व के कोने कोने में गए, और वो मुझे लगता है एक सफलतापूर्ण एक मूव था। और वो अब आपने देखा उसका जो हमारा फॉलो जो है वो यूक्रेन भी कर रहा है। अब यूक्रेन ने भी जब रसिया के ऊपर वो जो उनकी 40 विमानों को ध्वस्त करने का काम किया, उन्होंने भी विभिन्न देशों में डेलीगेशन भेजा। 3.5 साल से उनका युद्ध चल रहा है, लेकिन हमने कभी डेलीगेशन नहीं सुना। लेकिन पहली बार जब मोदी जी ने कोई एक सही कदम उठाया, उसको फॉलो वो लोग भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जरूरी था, और इसलिए जाकर के विश्व के पटल पर हमने ये आखिर कदम आतंकवाद के खिलाफ किन कठिन परिस्थितियों में उठाया, ये बात रखना जरूरी था, और विश्व के सामने वो बात आई। और सुशील जी एक सवाल पूछ लूं, आपको इतराज ना हो तो? एक बहुत अहम सवाल है सर, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोपाल तिवारी जी ने अभी एक बात कही है, वो उसका जवाब देना आपका बहुत जरूरी बनता है, और अगर आप कहें तो मैं उसका छोटा सा एक एनालिसिस दे दूं। क्या है कि 1971 में भी जब इंदिरा जी थी, इंदिरा जी वाज द प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त भी द पोजीशन ऑफ इंडिया वाज बैक्ड ओनली बाय द सोवियत यूनियन। यूएसएसआर ने बैक करी इंडिया की पोजीशन,
और हमारे जो उस वक्त के सोवियत ब्लॉक के जो देश थे उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। लेट्स बी वेरी क्लियर, वी न्यू दे वर विद अस। अगर इंदिरा जी बोलती, इंदिरा जी का तो स्टैचर इतना था, लेट्स बी वेरी क्लियर, मतलब सर वो तो मैंने खुद देखा ना सर, इंदिरा जी को तो हमने खुद देखा। एंड आई वेलकम प्रोफेसर प्रजापति। अरे वंडरफुल सर, वंडरफुल टू सी यू, क्या बात है सर। प्रजापति साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद सर, जय हिंद। अरे सर कोई बात नहीं, आपका चैनल है, जब मर्जी आए। सर सुशील व्यास जी, तो इंदिरा जी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर। उस वक्त के नेता, उस वक्त की वो सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त की भाषा की शैली, तहजीब, तमीज, ऑपोजिशन भी तमीज में रहती थी, तहजीब में रहती थी सर। आज की तारीख में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उस वक्त नहीं होता था। लेकिन आज जो गोपाल तिवारी जी बोल रहे हैं, बहुत लोग और भी बोल रहे हैं, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि भारत के पक्ष में सीधे साधे उठ करके बहुत कम देश सामने आए। जैसे अब जाकर के शशि थरूर साहब के कहने पर कोलंबिया ने भारत का साथ दिया, ब्राजील ने साथ दिया, इसके अलावा नेदरलैंड्स ने साथ दिया। लेकिन नेदरलैंड्स की तो सरकार अब गिर गई है, क्योंकि वो जो गिल्डर वाइट्स जो हैं वो उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया नेदरलैंड्स को। तो इस प्रकार, लेकिन ज्यादातर क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो मैं जानता हूं, बिकॉज आई हैव कवर्ड इट, आई कैन ओनली से दैट मच, बिकॉज यू नो ऑल ऑफ यू आर वेरी लर्नेड पीपल। कोई भी देश किसी भी देश के पक्ष में ज्यादातर कुछ बोलता नहीं है, ज्यादातर, बिकॉज एवरीबडी हेजेस देयर बेट्स। सर हर एक कोई जो है वो अपना स्वार्थ देखता है, आपके लिए कुछ नहीं करता, बिकॉज देयर आर नो फ्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, देयर आर ओनली इंटरेस्ट। सो डू यू थिंक दिस इज समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट कि इतना ज्यादा मोदी जी पूरे विश्व में गए, हर जगह पर उन्होंने जफियां मारी लोगों को, पता नहीं क्या कुछ किया, और वहां से कोई भी समर्थन का वक्तव्य नहीं आया, नंबर एक। नंबर दो, मैं चाहूंगा इस पर भी आप जवाब दें, मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि गोपाल तिवारी जी ने यह पूछा क्यों नहीं। मुझे लगता है गोपाल तिवारी जी बाद में पूछने वाले हैं, तो गोपाल तिवारी जी सॉरी, मैं इसके पहले कि आप पूछे मैं ही आपका सवाल पूछ लेता हूं। सर G7 समिट हो रहा है कनाडा में, पहली बार होगा कि भारत को इनविटेशन नहीं आया, पहली बार हुआ है सर कि भारत को निमंत्रण नहीं आया है, इसके बावजूद कि ट्रूडो साहब की सरकार बाहर हो गई है, उसके बावजूद कनाडा ने इंडिया को आमंत्रित नहीं किया है। तो अब आप बोलें सुशील व्यास जी, आई वुड लव योर एनालिसिस, बिकॉज you always take a very nationalistic view and a very rational view, which is why we really respect you, sir. बोलिए सर प्लीज। बजाज जी, आपने खुद ने अपनी बातों में कहा कि कोई भी देश जो है आपसे इंटरेस्ट के आधार पर संबंध रखता है। जी दुरुस्त बात, बिल्कुल। और आपने कहा कि जब इस तरह की दो देशों के बीच में इस तरह का कोई विवाद या युद्ध जैसी स्थिति आती है, तो कोई भी देश, बहुत कम स्थिति ऐसी होती है जो खुल करके आपके पक्ष में खड़ा होता है। करेक्ट, आई एग्री। अब ठीक है, हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ नहीं हुआ, मैं उसका पार्ट बी में जवाब दूंगा। पार्ट ए में मैं बहुत विनम्रता के साथ आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान के तो कई दोस्त थे, कौन सामने आया? सिर्फ दो, टर्की और अजरबैजान। वो ठीक है, वो तो उनका कमर्शियल उनका इंटरेस्ट है जी। अब देखिए, अगर उनका कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होता तो चाइना, टर्की, अजरबैजान तो सवाल ही नहीं उठता आने का। जी सर, चाइना की तो बात ही छोड़ दिया, चाइना तो पाकिस्तान का मालिक है ना सर, चाइना तो मालिक है ना पाकिस्तान का। पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, पाकिस्तान एज अ कंट्री इज ओन्ड बाय चाइना, लेट्स बी वेरी क्लियर। जी आगे बोलिए सर। थोड़ा मैं उस शब्दों को नहीं वापर सकता। हाँ, वो दो अपने स्वतंत्र देश है, लेकिन उन दोनों का आपस का कोई इंटरेस्ट है, तो कौन सा देश उनके पक्ष में खड़ा हुआ और कौन से देश ने उनके पक्ष में खड़े होकर भारत का विरोध किया? किसी ने नहीं। देखिए, करेक्ट। तो सवाल ये, और जब आपने ही अपने सेकंड पार्ट बी में आपने ही कहा, थरूर जी या अन्य नेता भी, चाहे वो सुले जी के नेतृत्व में हो या अन्य 7 विभिन्न हमारे विजय पांडा जी के नेतृत्व में हो, 7 हमारे दल विदेश में कोने कोने में गए पूरे विश्व में, सब जगह कुछ देशों, जैसे कोलंबिया का नाम आपने लिया, उनके विचार कुछ और थे लेकिन बदले। देखिए, quite true, which is an amazing achievement. By the way, that's an amazing achievement on the part of Shashi Tharoor. We were able to convince them Yes. that what we did is right.
Yes. So, and we were supposed to, we were forced to do that. So, तो ये चीजें हैं, तो भारत के खिलाफ कोई वातावरण नहीं है। ये मैं बात आपकी मानता हूं, ज्यादातर देश खुल के नहीं आए, उसका कारण भी आप ही ने बताया और मैंने उस चीज को मान्य किया, लेकिन विरोध में भी कौन था? तो ये एक विदेश नीति का और कूटनीति का एक अपना एक पहलू है जिस पे ठीक है, लेकिन भारत को सबसे पहली चीज थी आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेनी थी। हमने बिना किसी के कहने पे, बिना किसी की मध्यस्थता के, मैं बहुत जोर दे के कह रहा हूं, बिना किसी की मध्यस्थता के हमने अपने कदम उठाए, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया और ऑपरेशन सिंदूर को लगभग बहुत सफलता की तरफ आगे बढ़ाया। सर, और एंड अबाउट G7 सर, वो जान करके आप जवाब नहीं दे रहे, मुझे मालूम है। उतना मैं अभी तक प्रवक्ता उस लेवल का हुआ नहीं हूँ। ये लोग सर, ये मुंबई की भाषा में येड़ा बन के पेड़ा खाना, हाँ दिख रहा है, मुझको दिख रहा है। वेरी गुड, वंडरफुल। मैं मेरी पार्टी शिवसेना उसका अरे लव यू सर, एब्सोल्युटली लव यू। अरे विच इज व्हाई आई लव दिस मैन, सुशील व्यास साहब। ये सर नेक्स्ट टाइम आई एम इन ट्रबल, I am going to come to you. I have 86 cases against me. I would request you to fight at least 5 या 10 केस मेरे आप लड़ेंगे सर। I am sure nobody will be able to convict me. 100%. As a lawyer मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। Thank you very much, sir. Let's go straight across to Dr. Rakesh Prajapati. First of all, Prajapati साहब, I must congratulate you. Number one, सब लोगों के सामने, पता नहीं गोपाल तिवारी जी आपको मालूम है कि नहीं, सुशील व्यास जी आपको मालूम है कि नहीं, प्रजापति जी जिस प्रकार आज की तारीख में समाज सेवा में लगे हुए हैं, जिस प्रकार प्रजापति समाज की सेवा में लगे हुए हैं, उनके मैं वीडियोस वगैरह देखते रहता हूं, उन्होंने जो कुछ भी भेजा है, मैं कहता हूं सर, ही डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। जो पिछड़े समाज के लिए डॉक्टर राकेश प्रजापति इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूं सर, ही डिजर्व्स एन अवार्ड मिनिमम। सर बाकी लोगों को क्या है कि राकेश प्रजापति साहब इज अ वेरी हम्बल मैन, ही इज अ वेरी मॉडेस्ट मैन, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते राकेश प्रजापति साहब। और लेकिन अब हम लोग आ गए हैं, वी विल पब्लिसाइज वॉट एवर ही इज डूइंग। सर ही एटलीस्ट डिजर्व्स द रामोन मैगसेसे अवार्ड फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। जो काम राकेश प्रजापति साहब ने किया है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, बदायूं के आसपास, बदायूं से है सर, शकील बदायूं जी का गांव है, वहां से हैं, तो मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू आर इन द समाजवादी पार्टी। द समाजवादी पार्टी इज ऑल्सो अ वेरी गुड पार्टी, ऐसी बात नहीं है, इट्स ऑलवेज बीन अ वंडरफुल पार्टी। मुलायम सिंह यादव जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। अब मैंने जैसे आपको बोला, अखिलेश यादव जी एक जमाने में मुझे अंकल कहा करते थे, अभी पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे मुझे मालूम नहीं है, बट एज फार एज यू आर कंसर्न सर, even if you had not been in the Samajwadi Party, even if you had not been a party worker or whatever, the work that you are doing is amazing. I will send it to you, Gopal Tiwari ji, आपको और सुशील व्यास जी, मैं आपको भेजता हूं जो कुछ राकेश प्रजापति जी ने मुझे भेजा है, and I don't even need his permission for it. आप जरा देखिए, you will really admire this man. Fantastic sir, absolutely fantastic. And मतलब very good sir, very good. योगी मगर मतलब बहुत जबरदस्त। सर सतीश जी मैं सवाल पूछ लूं, उसके बाद आप योगी जी के बारे में पूछें। पहले सर आपका एनालिसिस, आपका विश्लेषण, अब तक जो पाकिस्तान के साथ हमारे अभी तक टेंशन रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, सर मेरा खुद का ओपिनियन ये है, जैसे मोदी जी खुद बोला करते थे और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी बोला करते थे कि भैया आप जो हैं बहुत चीजों को बदल सकते हैं, अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, सीधी बात है। आखिर में अगर हम पाकिस्तान को 4 हिस्सों में नहीं तोड़ सकते तो पाकिस्तान को क्या कहेंगे, वी मस्ट हेल्प पाकिस्तान बिकम ए नेशन, जो अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि पाकिस्तान को एक लोकतंत्र देश बनाने में भारत को मदद करनी चाहिए। मतलब जो फौज पाकिस्तानी आर्मी जो है और उसके अलावा जो वहां के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, आप देखिए ना, वहां पे या तो कोई भुट्टो बनता है प्रधानमंत्री या कोई शरीफ बनता है, और तो कोई बनता ही नहीं है। एक बेचारा बना, उसके साथ जेल में भी क्या कर दिया उन्होंने इमरान खान के साथ, वो आपके सामने है। तो आपको लगता नहीं है सर दैट वी हैव टू प्लान फॉर दैट आल्सो? व्हाट डू यू थिंक राकेश प्रजापति साहब, प्लीज बोले प्लीज। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। निश्चित रूप से आपको मैं लेट जुड़ा उसके लिए माफी चाहता हूँ सबसे पहले, लेकिन जिस तरीके की मैं चर्चा सुन रहा था और आपने पूरा एनालिसिस किया, लेकिन मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ इस मामले में कि भारत का एक भी नागरिक
मुझे एक भी नागरिक नहीं मिला, चाहे वो भाजपा में आस्था रखता हो या ना रखता हो, यहाँ तक कि भाजपा में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का ब्लाइंड सपोर्टर था, वो भी ये चाह रहा था कि मिशन सिंदूर लंबा चले, आगे चले, और पीओके को कम से कम एक दो बातें हैं यहाँ पर, पीओके भारत में शामिल हो और बलूचिस्तान के पाकिस्तान के एक बार फिर से दो टुकड़े हों और पाकिस्तान के दो टुकड़े होकर के बलूचिस्तान को अलग से देश बनाया जाए। इस पर लोग सेटिस्फाइड थे, लेकिन जो भी हुआ, चलिए उनकी विदेश नीति है। किस नीति के तहत हमारे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने और रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने ये किया, पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हुआ था। पहली बार ये भारत के अंदर देखा गया था, मैं भी लगभग 47 साल का होने जा रहा हूँ, कई सालों से लगातार सक्रिय हूँ समाज सेवा में। पहली बार भारत के अंदर ये देखा गया था कि पाकिस्तान के विरुद्ध या जितने भी आतंकवादी मारे गए थे, एक विशेष कम्युनिटी को जिसको टारगेट हम लोग करते हैं, उस कम्युनिटी के लोग भी सड़कों पे उतर करके प्रदर्शन कर रहे थे और सांत्वना प्रदान कर रहे थे, शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, कैंडल मार्च कर रहे थे और चाह रहे थे कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। हैदराबाद के असाउद्दीन ओवैसी जब पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे तो पूरा देश अचंभित था, क्योंकि उनको बड़ा टारगेट गलत तरीके से किया जाता था। ऐसे ही पूरा मतलब जो कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी, सीधे सीधे मैं कहूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो पाकिस्तान को नहीं कोस रहा हो, उस समय पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रहा था। लेकिन आखिर क्या मजबूरियां थी? राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट आया है वो बिल्कुल ठीक आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी भी बिल्कुल ठीक कहते थे कि भाई आखिर इतनी जरूरत क्या थी, आखिर आपने सरेंडर क्यों किया? जो वर्ड यूज हो रहा है सरेंडर, और बिल्कुल सही हो रहा है भाई। आपकी तो तूती बोलती है पूरे देश, पूरे विश्व में, आपका तो डंका बजता है पूरे विश्व में। और अभी आप ही बता रहे थे, मैं तो आपसे बड़ा सीखता हूँ, मैं आप ही ने बताया कि उस युद्ध के दौरान एक भी देश भारत के साथ खड़ा हुआ नहीं था। ये इससे ज्यादा अफसोस की क्या बात है? पाकिस्तान के साथ, जैसा कि आपने बताया, कम से कम 2 देश तो खड़े हुए थे, भले ही छोटे छोटे देश थे, उनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन कम से कम दिखावे के लिए भी खड़े हुए थे। और एक सबसे बड़ा देश जिसे आप बात बोलते हैं पाकिस्तान का, चाइना का, वो खुल के खड़ा हुआ था। तो ये कहें कि 3 देश तो उसके साथ खड़े हुए थे। जिस देश को सबसे ज्यादा भारत भरोसा करता था, रूस, जिससे ये कहते थे रूस तो हमारे साथ ही रहेगा, लेकिन आज अभी से 7 दिन पहले की बात है, रूस किस तरीके से पाकिस्तान के साथ व्यापारिक समझौता कर रहा है, ये देखने की बात है। आज पाकिस्तान, भारत को सबक लेने की जरूरत है। और आप अभी बता रहे थे कि ये पहली बार हो रहा है, ये भाजपा की सरकार में पहली बार हो रहा है, विश्व में पहली बार हो रहा है, या कहें 70-78 साल आजादी के बाद पहली बार हो रहा है कि G7 में भारत को बुलावा ही नहीं भेजा गया। इससे ज्यादा शर्मनाक दिन हमारे लिए नहीं हो सकता, इससे ज्यादा विदेश नीति कभी खराब नहीं हो सकती। इसका मतलब विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, कहीं भी काम नहीं कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का सफलता यहाँ के हर कार्यकर्ता, हर घर तक पहुंचाना है, आपको पहुंचाना है। मिशन उत्तर प्रदेश 6 फाइटर जेट, 30 पाक क्रूज मिसाइल, 2 एवैक C-130 हरक्यूलिस, यूएस और अलग अलग देशों का रैडर जिस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल ने तोड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर घर घर तक पहुंचाना है। मोदी साहब का उपलब्धि जीतने का, विक्ट्री, ऑपरेशन सिंदूर पहुंचाना है। हाउ यू सी? योगी आदित्यनाथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं ये हमारे जीत का एक मिसाल है। प्रदीप जी, अभी इनके भाजपा के कुछ नेताओं ने एक प्लानिंग भी बनाई थी कि घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे, मिशन सिंदूर के उपलक्ष्य में। पता नहीं भाजपा के प्रवक्ता शायद बैठे हुए हैं, और तो देश के बड़े न्यूज चैनल हैं, मीडिया हैं, उन्होंने भी खूब डिबेट चलाई थी। अब सिंदूर पहुंचेगा घर घर,
और मैं कहना चाहता हूं, इनके प्रवक्ताओं ने भी, भाजपा के प्रवक्ताओं ने भी बड़ा उसका पक्ष लिया था और बड़े लंबे लंबे चौड़े वादे किए थे। लेकिन धन्य है देश की सोशल मीडिया, धन्य है इस देश की महिला शक्ति, धन्य है इस देश के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की महिलाओं ने सड़कों पे उतर के ये कहा था कि जो सिंदूर लेके आएगा उसका स्वागत जूतों से, चप्पलों से, थालियों से, बेलनों से किया जाएगा। ये इसीलिए अब उस योजना को इन्होंने बंद कर दिया और अब ये कह रहे हैं आप सिंदूर नहीं पहुंचाए। अरे भाई क्यों नहीं पहुंचाते, एक बार कर दो ना। और मैं तो ये कह रहा हूँ एक बार जसोदा बहन जी के यहाँ भी तो पहुंचा दीजिए सिंदूर, कम से कम उनकी तो मांग भर जाए। कितने सालों से उन्हें धोखा दे दिया है। हिंदू धर्म में पत्नी को छोड़ना सबसे बड़ा धोखे का काम होता है। तो एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो अपनी पत्नी के नहीं हो सके तो देश के क्या होंगे, ये बड़े शर्म की स्थिति है। रही बात प्रदीप जी जो आपके प्रश्न की है कि योगी जी कह रहे हैं कि सिंदूर योजना उत्तर प्रदेश हो, ये उत्तर प्रदेश का मामला ही नहीं था, ये तो राष्ट्र का मामला है, ये सेना का मामला है। और देखिए जब ये घटना हुई है तब हमने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा था कि हमें अपनी सेना पर गर्व है, हमें अपनी सेना पर नाज है, हमें इस देश की सेना ने हमारा सर ऊंचा किया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया, मिसाइल दागने का काम किया। लेकिन सैनिकों के क्रेडिट को योगी जी नहीं ले सकते, सैनिकों के क्रेडिट को मोदी जी नहीं ले सकते, सैनिकों के क्रेडिट को अमित शाह जी नहीं ले सकते। सैनिकों का क्रेडिट सैनिकों को भी देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ये आप सर्वे करा लीजिए, देश का एक भी सैनिक, कुछ लोग ये कह रहे थे सैनिकों का नुकसान हो जाता, सैनिक शहीद हो जाते, सैनिक खत्म हो, लेकिन देश का एक भी सैनिक इस समय ये नहीं चाहता था कि सीज फायर हो, एक भी सैनिक नहीं चाहता था। क्योंकि सैनिक जिस दिन सेना में भर्ती होता है उसी दिन वो अपने सर पर कफन बांध करके घर से निकलता है कि मैं इस देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा और अपने भारत माता की जिंदाबाद करूंगा। भारत माता का सिर कभी भी झुकने नहीं दूंगा, ये देश के सेना सोचती है। मैं गोपाल तिवारी जी को बोलूं, गोपाल जी राहुल जी बार बार जो अटैक कर रहे हैं, लीडरशिप क्राइसिस, मोदी सरेंडर किया, 1971 में हमने सरेंडर नहीं किया। शशि थरूर कह रहे हैं कि मीडिएशन तो हमें जरूरत ही नहीं था, मीडिएशन तो पाकिस्तान को जरूरत था, पाकिस्तान मीडिएशन के लिए सामने आया, हमने ऑफर एक्सेप्ट किया। शशि थरूर जी ने क्लियर कट कहा नो, ट्रंप वॉज नॉट इन्वॉल्व, ट्रंप वॉज नॉट इन्वॉल्व। तो बीजेपी का कहना, आपके ही नेता शशि थरूर का आप सुनिए कि जब ट्रंप का उन्होंने कहा कि कोई रोल नहीं, इंडिया ने मीडिएशन के लिए नहीं गए, सरेंडर का सवाल ही कहां आता है। व्हाई डिड यू लिसन टू शशि थरूर एंड सलमान खुर्शीद? गोपाल जी। प्रदीप जी, और एक उससे पहले एक दो बातें मैं बताता हूं। अभी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपने अपने राष्ट्रों की जो बात हुई थी, तो हमारे व्यास जी ने कहा था कि अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो नीदरलैंड का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो जो मोदी जी को दिया था, उस समय हमने भारत में उनको कई प्रोजेक्ट के लिए $2.5 बिलियन की मदद की थी, रुपयों की। तो कई जगह हमने ऐसे मदद की है और वहां का सर्वोच्च पुरस्कार जो है, अवार्ड है, उनको मोदी जी ने दिया है। लेकिन इस समय जब हमको चाहिए था उस घड़ी में वो कोई देश हमारे सामने या हमारे साथ में नहीं आया, ये बात। दूसरी बात, अगर ये शशि थरूर जी ये भी कहते हैं तो यही शशि थरूर जी ने अभी ये भी कहा था कि जब अटैक हुआ था पिछली बार उरी का, तब यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी बात रखी थी कि उन्होंने पाकिस्तान को फोन करके बोला कि आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते हो। सो ये कौन सी बात है सर? इट्स शॉकिंग। ये बात भी शशि थरूर जी ने कही कि भाई आप ISI जो है आपका पाकिस्तान को, उनको आपने पठानकोट एयरबेस में जाने के लिए परमिशन दी। और तो मतलब आपके संघ के प्रदीप कुरुलकर जी है, वो पाकिस्तान को हनी ट्रैप में मदद करते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं या कोई सबक सिखाने जैसा कोई ये नहीं करते हो आप। मतलब क्या चला है सर? ये देश का कोई मजाक बना के रखा है क्या सर?
और ये सब बातें हैं जो ट्रम्प ने 11-11 बार कही है, इसी के बारे में बोल रहे थे हम। और अभी भी हमने जो हमारे जो प्रजापति जी थे उन्होंने काफी बातें रखी जो मैं वापस दोहराना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने बहुत सही ढंग से बात रखी सर, आई अप्रिशिएट उनको, प्रजापति जी का। तो हमारे इंडिया गठबंधन ने जो एक डिमांड है कि अभी भी समय नहीं गया, अभी भी जल्द से जल्द एज ए अकाउंटेबिलिटी के तौर पे अपना उत्तरदायित्व समझ के पार्लियामेंट सेशन लिया जाए। सर आर्टिकल 45 की तरफ से, मतलब जो 45 आर्टिकल है उससे आप अकाउंटेबल हो पार्लियामेंट के लिए। जो आपको बताना चाहिए वो फिर आपका बिहेवियर है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर हमारे प्रधान गृह मंत्री बंगाल में जाके इतना होने के बाद मतलब सोफिया कुरैशी ने जो बताया था कि और ये हमारे मिस्त्री जी ने भी बताया था कि पाकिस्तान एक पत्थर से दो निशाने करता है, कि जब आज तक इतना नहीं हुआ जो उन्होंने हिंदू पूछ के गोलियां मारी, तो पाकिस्तान जानता है कि अभी जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, अगर वो रहते हुए हिंदू मुस्लिम अगर करना है तो आसानी से हो सकता है, क्योंकि वो सत्ता पार्टी भी एक ही धर्म का कोई समर्थन करती है। क्योंकि बंगाल में हमारे जो अमित शाह जी है, उन्होंने इनको सुनाते हुए ये भी कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर ममता जी उसका खिलाफ करती है तो मुस्लिम को तुष्टिकरण के लिए करती है। तो अभी भी अमित शाह जी ऐसा समझते हैं क्या कि भारत के सभी मुस्लिम जो पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर नहीं करवाना चाहते? व्हाट नॉनसेंस, ये क्या चल रहा है? ये अगर अमित शाह जी अगर ऐसे स्टेटमेंट अगर वहां के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में देते हैं तो इससे मैसेज क्या जाता है? He is not ordinary person, sir. He is the होम मिनिस्टर, और ये होम मिनिस्ट्री का काम है कि अगर आपको नॉलेज में जो भी भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के फेवर में उसको ढूंढ निकालो, सजा दिलवाओ। ये तो कुछ करते नहीं हो आप, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो। आपके जो वहां के उधमपुर के जो पठानिया है वो सेना के खिलाफ कितना कुछ बोल गया कि सेना के जवान आप सोए हुए थे क्या, कैसे हमला किया, बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई उन्होंने। व्हाट नॉनसेंस, ये सेना को आप सुना रहे, आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। आपका जो विजय शाह है सोफिया कुरैशी के बारे में मुस्लिम महिला करके आपके बहन को बोला, ऐसे बोलते हैं, उसके ऊपर आप बीजेपी एक्शन नहीं लेती। आपका जो देवड़ा है वो बोलता है पूरी भारतीय सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस यार, या क्या अपमान कर रहे हो सेना का आप बार बार? शर्म आनी चाहिए। जो भी मोदी के साथ में जो पार्टियां समर्थन दे रही है उनकी भी जवान को लगाम लग गया क्या? उनको बोलने नहीं सकते कि मोदी जी आप आपके पार्टी के नेताओं को समझाओ या उनके ऊपर कार्रवाई करो? ये सब आप मोदी के चरणों में नतमस्तक। मध्य प्रदेश का ऊपर डिप्टी सीएम कहता है ये, और उसके ऊपर आप कहीं पे भी एक कार्रवाई तक नहीं करते हो। Let me go across to सुशील व्यास जी। सुशील व्यास जी, ये जरा विडंबना है बहुत बड़ी कि वो विजय शाह साहब जो है उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं हुआ अभी तक। वेरी स्ट्रेंज। I understand that has got nothing to do with your party. ये पठानिया, उधमपुर का पठानिया एमएलए बीजेपी का। But I really would like to know why is Mr. Vijay Shah still there? He's a minister. I understand. I understand. मैं आशा करता हूँ उतनी विनम्रता के साथ जब मैं कोई बात कहूँ तो गोपाल भाई उसको बिना रोके सुन लेंगे। आप कहने की क्षमता रखते हो तो सुनने की भी क्षमता मेरे ख्याल से भाई साहब में है। आपने कहा कि विजय शाह ने ये कहा, जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने ये कहा, पठानिया ने कहा, कोई एक्शन नहीं हुई। क्या आप एक बार पुनः विचार कर सकते हैं कि एक्शन किसको कहते हैं? हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। उन्होंने सीट बैठाई है मिस्टर विजय शाह के खिलाफ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एफआईआर लॉन्च हुआ है, जगदीश देवड़ा पर एक्शन हुई, पठानिया के खिलाफ आवाज आई है और कोई उनका समर्थन नहीं करता। आई वांट टू गो ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट, आपने कहा समर्थन देने वाली पार्टियां, मैं छाती ठोक के कहता हूं इन तीनों आदमियों के समाज से ना मेरी पार्टी सहमत है, ना मेरा नेता सहमत है, ना मैं सहमत हूं। और क्या चाहते हैं आप?
और दूसरी बात आपने कहा कि कोई ये देश साथ में नहीं, वो देश साथ में नहीं, इतना प्यार मोहब्बत, वो हॉलैंड का प्राइज मिल गया। इंडो चाइना भाई भाई 1962 में किसने कहा था? उसके बाद क्या गत की हम लोगों की? इतिहास में जाओगे गोपाल भाई तो सब सुनना पड़ेगा। और 1971 में इंदिरा जी ने एक शेरनी की तरह, एक दुर्गा की तरह भारत का अगर परचम फहराया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो एक नेता था जिसने संसद में खड़े होकर कहा वो दुर्गा है, तो वो एक भावना थी। आज संवाद बदला है, संवाद का तरीका बदला है, जिस भाषा में आप बात करोगे उसी भाषा में जवाब भी आएगा। आप उस तरह के विपक्ष की तरह रोल अदा कीजिए जो रोल हुआ करता था, जिसका जिक्र शुरुआत में बजाज जी ने किया। हम उस लीग से भटके। हमें अच्छा लगा जब ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत के 3-4 दिन पूरा देश का पक्ष विपक्ष एक होकर के, हिंदुस्तान का एक नागरिक जिसका जिक्र प्रजापति जी ने भी कहा कि एक जाति विशेष जिसको हम हमेशा कुछ अलग नजर से दिखते थे, वो भी सड़कों पे आकर के इस देश के नागरिक के रूप में उन्होंने बात करने की बात कही। तो ये अच्छा लगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का नागरिक अपने ऊपर हुए हमले को लिए एक था। फिर क्या हो गया अचानक कि आप लोगों को अपनी भाषा बदलनी पड़ी? क्या हो गया अचानक आपके सेना के आपके उस योगदान पर, उस सेना की उपलब्धि पर प्रश्नवाचक प्रश्न उठाने लगे? या सेना ने उपलब्धि नहीं की? आपको मोदी जी का चेहरा पसंद हो या नहीं हो, आपने सेना की उपलब्धि का ऊपर प्रश्न जब उठाना शुरू किया तब इस तरह की बातें सामने आई। इसलिए गोपाल भाई कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए उस लेवल पे लिए जहां पे इसका डिस्कशन हो। अगर चर्चा करनी है तो हम चर्चा। और दूसरी बात मैं कहूं, सत्ताएं आएगी सत्ताएं जाएगी। आज कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी के समर्थित दलों के साथ सरकार है, लेकिन विदेश नीति और कूटनीति नहीं बदलनी चाहिए और न बदली है। और अगर आप इस तरह से चर्चा करेंगे तो आपका कहना ही है कि आज बीजेपी समर्थित सरकार है तो विदेश नीति अलग होनी चाहिए, कल कांग्रेस की सरकार आएगी तो विदेश, ये नहीं होता कभी। विदेश नीति कूटनीति चाहे सरकारें किसी दल की हो, वो देश की होती है और देश एक आवाज में कहना चाहिए, एक भाषा में बात करना चाहिए। ये मेरी विनम्रता से मैं आपकी जो बात थी उसके बाद जवाब है, मैं और कुछ इसके आगे नहीं। व्यास जी, जस्ट एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू सेड, यहां पर एकनाथ शिंदे जी ने क्लियर कट कहा, आई स्टैंड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डन अ वंडरफुल जॉब वेयर ऑपरेशन सिंदूर इज कंसर्न्ड। मगर राहुल गांधी जी, कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बार बार ट्रंप मीडिएशन, जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि ट्रंप मीडिएशन वाज नॉट देयर, यूएस वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, ट्रंप इज नॉट इन्वॉल्व। शशि थरूर यूएस में जाके सब जगह जाके कहा कि यूएस हैड नो रोल टू प्ले, इट वाज म्यूचुअली पाकिस्तान। तो व्हाई शशि थरूर का नहीं सुन रहे, सलमान खुर्शीद का नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का नहीं सुन रहे, प्राइम मिनिस्टर मोदी का नहीं सुन रहे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सुशील व्यास जी, अब मुझे बताइए नामबिहार जी, शशि थरूर जी तो इनके 4 टर्म के सिटिंग लोकसभा मेंबर हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, और आज उनको नेता बना के वहां भेजा गया। बहुत अच्छा, उन्होंने काबिले तारीफ वहां पे अपना रोल अदा किया है। तो उनकी बात को भी ये झुटलाना चाहते हैं तो अब ठीक है। ये सलमान खुर्शीद जिनका जिक्र आपने किया, विदेश राज्य मंत्री रहे आज से 20 साल पहले, तो उनको तो नॉलेज है कि नहीं है? सर उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। मैं वही कह रहा हूं, वो विदेश मंत्री थे तो राज्य मंत्री थे जी। तो सवाल यह है कि कम से कम अपने दल से संबंधित व्यक्ति, और मैं नहीं मानता वो जिस समय वो विदेश की धरती पे गए वो एक भारतीय के रूप में गए, लेकिन अगर ये लोग अब जब दल विशेष की बात करना शुरू करते हैं तो भाई साहब आज की तारीख में भी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित सदस्य हैं। इस बात को आप नकार सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं या नकारना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे लिए वो एक सम्मानित भारतीय के रूप में वहां पे गए और विश्व के पटल पर अपनी बात रखी, उसके हमें गौरव है। और रही बात मध्यस्थता की, मैंने बार बार कहा नामबिहार जी, आपके चैनल पे भी दूसरे चैनलों पे भी, कि 10 मई 3-3:30 बजे डीजीएमओ पाकिस्तान के फोन के बाद सारी कहानियां शुरू हुई और वो जब घुटने पे आए उन्होंने विनती की कि सीज फायर किया जाए, उसके चलते सारी चीजें हुई। और ये बात किसी बीजेपी के नेता ने या शिवसेना के नेता ने देश के सामने नहीं रखी। यहाँ के डीजीएमओ तीनों, वायुदल, नौदल, नौसेना और अपने थल सेना, तीनों ने आकर के कहा कि किस तरह से सीज फायर किन परिस्थितियों में हुआ। तो आप उनकी बातों को तो कम से कम मान लीजिए। आप चलिए राजनीतिक रूप में हमारे विरोधी, हम हमारी बात नहीं मानेंगे कि आप सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की बात को भी ठुकरा देंगे, उसको भी राजनीति का उल्लू अपना सीधा करने के लिए मोहरा बना लेंगे। मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए, उनसे उनका मनोबल टूटता है, उनका मनोबल कम होता है, सेना का मनोबल मत तोड़िए कम से कम। डॉक्टर राकेश प्रजापति साहब, बार बार ये बात आ रही है कि ट्रंप साहब ने तकरीबन कोई 9 बार या 11 बार ये कहा है कि उनकी मध्यस्थता की वजह से सीज फायर हुआ, ये कहा है उन्होंने, उसमें कोई दो राय नहीं है।
और तो और छोड़िए, एक ऑफिशियल एफिडेविट भी दिया गया है अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से इन द कोर्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर आर्बिट्रेशन इन द यूएस। वहां पर भी दिया गया है कि भाई you have to listen to us because if you stop the tariffs imposed by the US president, there's a possibility that the India-Pakistan conflict may flare up again. This is something that has been said on affidavit. Now point is, we can't control what the American president says. आपको क्या लगता है सर, क्या नरेंद्र मोदी जी को वास्तविकता में ट्रंप साहब का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपके मुताबिक बताएं प्रजापति साहब। राजीव जी, पूरा देश अचंभित था जब ट्रंप का वो ट्वीट आया था। जी भाई, ट्वीट, लड़ाई हमारी चल रही थी, लड़ हम रहे थे, नुकसान हमारा हो रहा था, नुकसान 26 लोगों की निर्मम हत्या हमारे देश के लोगों की गई थी, और सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मध्यस्थता की बात, ठीक है, मध्यस्थता का क्रेडिट उन्हें दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन अगर वही ट्वीट देश के प्रधानमंत्री या देश के राष्ट्रपति की तरफ से पड़ता, या देश के रक्षा मंत्री या गृह मंत्री की तरफ से पड़ता, या जो हमारी डिफेंस है डोवाल जी हैं उनकी तरफ से पड़ता, तब इस देश का सम्मान होता। वही उस ट्वीट से देश का सम्मान नहीं हुआ था। और निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूं कि ये वही ट्रंप तो हैं जिन्होंने अभी दूसरी टर्म में, ट्रंप 2.0 में, मोदी जी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया नहीं था। जबकि मीडिया में तो ये भी चल रहा था कि इन्होंने एक मिनिस्टर को भेजा था कि जाकर के न्योता ले आए, न्योता दे दें, ट्रंप जी को अनुरोध करने तक के लिए भेजा था कि ट्रंप जी न्योता दे दीजिए मोदी जी को, जिससे कि मोदी जी आ जाए। इससे ज्यादा बेइज्जती इस देश की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। फिर आखिर जब ट्रंप इतना सब कुछ मोदी जी के साथ कर सकते हैं, मैं तो ये कहूं कि ट्रंप इतना धोखा दे सकते हैं मोदी जी को, तो मोदी जी को भी चाहिए था कि ट्रंप के विरोध में एक आध बात तो कम से कम बोलना चाहिए था। लेकिन मैंने पहले ही कहा ना, इनकी विदेश नीति केवल और केवल फोटो तक सीमित रह करके रह गई है। केवल फोटो खिंचाने के लिए विदेश नीति है, इसके अलावा कोई भी चर्चा नहीं होती। देश के अंदर माननीय मोदी जी पिछले 11 साल हो गए कंप्लीट, पूरे 11 साल हो गए। आज 4 जून हो गया, आज के दिन रिजल्ट आया था। 11 साल हो गए, 11 साल में देश के अंदर मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, एक, नॉट ए सिंगल की है तो बताए, नॉट ए सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। और अमेरिका में जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं, हिंदी समझ में नहीं आती सही तरीके से, और अंग्रेजी पत्रकारों प्रोफेसर प्रजापति साहब वहां पर किस तरीके से उलझे थे वो भी पता है जी। प्रोफेसर प्रजापति साहब, 11 साल के आपने जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ जी ने यही 11 साल के उपलब्धियों को लेकर यूपी के हर घर में सबको पहुंचाने वाला, 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से उठा लिया, 50 करोड़ आयुष्मान भारत, 12 करोड़ शौचालय, 11 करोड़ किसान, 4 करोड़ गरीबों के घर। आज योगी आदित्यनाथ जी राम दरबार में, राम मंदिर में जिस प्रकार से अपने बर्थडे को मना दिया, और आके जाके अनाउंसमेंट किया कि अग्निवीर को 20% कोटा है यूपी पुलिस में। तो ये उपलब्धियां गिनाकर योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से कह रहे, तो आप मुकाबला कैसे करोगे? प्रजापति प्रोफेसर प्रदीप जी, इनकी सारी योजनाएं फ्लॉप हैं। अगर अग्निवीर इतनी अच्छी योजना है तो ये आरक्षण देने की नौबत इन्हें क्यों आई, यही प्रश्न चिन्ह है। अगर ये दूसरों के नाम पर क्यों वोट मांग रहे हो भैया, मोदी जी के नाम पर क्यों वोट मांग रहे हो? उत्तर प्रदेश में हो आप, लड़ाई आपकी अखिलेश यादव जी से है, सीधे वन मैन, और कांग्रेस के साथ हमारे साथ एक्ट है, और 2027 में हम लोग मिलकर के लड़ेंगे चुनाव। अगर
मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि 2027 में ठीक 2024 की पुनरावृत्ति होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जिस तरीके से 2024 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं समाजवादी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बल्कि ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे आज लग रही है, वो है ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की जो राहुल गांधी जी आजकल चर्चा कर रहे हैं और उनकी जो राजनीति कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा हमारे इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और पीडीए के रूप में चल करके आप ये समझ लीजिए 2027 में प्रजापति जी 43 सीटें हम लोग 2024 में जीते, 45 के हिसाब से हम 240 से ज्यादा सीटें जीते जा रहे हैं। Wonderful. Well, one second, sir. गोपाल तिवारी साहब, you need to leave, I think. 8:10. जी, गोपाल तिवारी जी, आप शायद जाना चाह रहे हैं. Would you just give me a Yes. final comment before you go? One final comment from you before you go, sir. Do you think Yeah. मोदी जी should reply to Trump? जो अभी प्रजापति जी ने कहा, आपको लगता है कि भारत के हित में है कि मोदी जी को ट्रंप को रिप्लाई करें? आप बताएं सर, ये सर। बिल्कुल बिल्कुल 100% सर, वो तो रिप्लाई करना ही करना है उनको। ये तो ऐसा नहीं चलेगा। इज द रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल प्राइम मिनिस्टर, और सेशन भी बुलाना चाहिए, सेशन को एड्रेस करना चाहिए। ये बार बार जो इनका जो चल रहा है, इनके प्रेशर में आके हमने ये किया है, और इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर उसके क्या कारण है अभी गॉड नोज, उसके भी कोई अमेरिका के कोर्ट में अडानी जी के खिलाफ काफी कुछ केसेस है, या उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो गॉड नोज, वो तो पता नहीं। लेकिन जो वास्तविकता है वो बिल्कुल अलग है, तो उसके बारे में उन्होंने जवाब देना चाहिए। राइट, गोपाल तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जय सिया राम। थैंक यू। जय सिया राम। राइट, राकेश प्रजापति जी, प्लीज फिनिश। सर, आप कुछ बोल रहे थे, प्रजापति साहब, प्लीज गो हेड सर। बोले सर। प्रजापति जी, आप कह रहे थे कि इस बार पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बहुत जबरदस्त सीटें आने वाली हैं उत्तर प्रदेश की असेंबली इलेक्शंस में। जी बताएं सर, प्लीज गो हेड। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि जिस प्रकार से 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक का जो फैक्ट किया था, और राजीव जी मैं बताना चाहता हूं पूरे भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि दो सुरक्षित सीटों पर एससी के लिए जो सुरक्षित सीटें थी, अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीटें थी, सॉरी दो सामान्य की सीटें थी, अयोध्या और मेरठ ये सामान्य के लिए थी। यहाँ पर दोनों जगह पर दलित प्रत्याशी उतारने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था। मेरठ के अंदर सुनीता वर्मा और अयोध्या के अंदर अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद पासी को लड़ाने का काम किया, जिसमें अवधेश प्रसाद जी तो चुनाव जीते, लेकिन मेरठ से भी सुनीता वर्मा चुनाव जीत गई थी। लेकिन वहां पर अरुण गोविल जी उन्होंने राम का किरदार निभाया था, तो कहीं राम दोनों जगह से हार ना जाए, इसलिए बीजेपी ने अपनी किरकिरी बचाने के लिए मेरठ में चुनाव हरवाने का काम किया। तो आप सोचिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विजन को कि पीडीए पर चलते हुए उन्होंने सामान्य सीट पर दलित को लड़ा करके कितना बड़ा संदेश दिया था। ठीक उसी प्रकार से 2027 में आपको आश्चर्यचकित होने वाले टिकट देखने को मिलेंगे। यही कार्य समाजवादी पार्टी 2027 में करेगी और भाजपा को पूरी तरीके से समाप्त करेगी, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी और 6 सीटें कांग्रेस जीती थी, टोटल मिलाकर के 45 सीटें जीती थी। यानी कि अगर आज की डेट में चुनाव करा लिया जाए तो समाजवादी पार्टी अकेले कम से कम 250 से 300 सीटें जीतने जा रही है। व्यास जी, जो थाने गौड़बंदर प्रोजेक्ट, ट्विन टनल एलिवेटेड रोड, एकनाथ शिंदे जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, ठाणे में भी हो रहा था। एक जबरदस्त एलिवेटेड रोड और ट्विन टनल का प्लान था, उसको स्क्रैप किया गया। एमएमआरडीए, आदित्य ठाकरे जी और कांग्रेस बार बार निवेदन कर रहा है, यानी डिमांड कर रहा है कि शिंदे साहब इस्तीफा दे। तो किस प्रकार से देखते हो आप इसको? नाम्बियार जी, देखिए, उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया इनके
इन जो प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे लगाने का। मुझे तो बड़ा कभी इनकी जो विपक्ष के जो साथी जिनका नाम आप लिया, हम तो नाम भी नहीं लेते आजकल उनका, उनकी हताशा निराशा इस चरम सीमा पे पहुंच गई कि कम से कम देश के उच्चतम न्यायालय के आदेश को पढ़ तो लें। उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पे कहा है कि इसकी रीटेंडरिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि ये प्रोजेक्ट एज सच और प्रोजेक्ट एज ए होल इज नॉट वायबल और नॉट फिजिबल। अब उसका रीटेंडरिंग होगा, उसका रिव्यू होगा, और बिल्कुल एकनाथ शिंदे जी का सपना है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो पूरे होने और होंगे, और उसको रिटेंडरिंग करके बाकायदा जिन टेक्निकल त्रुटियों को तकनीकी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे करने का काम किया, उसको दूर करके ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। ये आप मेरे दल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे नेता की तरफ से शब्द ले सकते हैं। आज कांग्रेस के लीडर्स भी कह रहे हैं कि 50 लाख जो महिला है, लाड़की बहन, 50 लाख लाड़की बहन का आपने स्क्रैप कर दिया बिकॉज वो शायद एलिजिबिलिटी नहीं था। तो धीरे धीरे पूरे वो प्लान ही स्क्रैप होगा जिस प्रकार से चल रहा है। ये एकनाथ शिंदे जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था लाड़की बहन, और उस इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त था इलेक्शन के टाइम पर। नहीं नाम्बिया जी, इम्पैक्ट आज भी है। हम हमारी लाड़की बहनों को कोई मजदार में छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन जो बातें सामने आ रही है वो हमारे उप मुख्यमंत्री और जो वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं अजीत पवार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से पब्लिक डोमेन में कहा है कि जो मापदंड हमने 27 जून 2024 को विधानसभा में अपना बजट पेश करते हुए जिस समय ये योजना जन कल्याण के रूप में घोषित की गई थी, उन मापदंडों में से कहीं भी वर्तमान सरकार हिलती है या उनमें कोई चेंजेस करती है तब तो हमारे पे आरोप लग सकता है। लेकिन अब उस समय जो मापदंड तय किए, उदाहरण के लिए कोई सरकारी कर्मचारी है जिसको बिल्कुल ही क्वालिफाइड नहीं है इस योजना, और उन्होंने करीब 2.5-3 लाख हमारी बहनों ने जो सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद इसका लाभ ले रही थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो, जैसे मैंने बताया, नमो कृषि एक योजना है, उसमें 1000 रुपया महीने का योगदान अनुदान मिलता है। तो ये योजना पहले से थी, इन ऑल 1500 रुपया से ज्यादा आपको अनुदान नहीं मिलेगा। तो अगर 1000 रुपया आप वहां ले रहे हो तो 500 इसमें से मिलेगा, 1500 रुपये से ज्यादा आपको अनुदान। इस तरह से कई तकनीकी मामला है, लेकिन जो मूलतः घोषणा की गई थी योजना की, हमारी बहनों को 1500 रुपया महीना जो उन मापदंड में फिट बैठती हैं उनको मिलेगा, और ये योजना कायम रहेगी। कहीं इसमें इधर उधर होना नहीं है, योजना मजबूती से आगे भी रहेगी। वंडरफुल सर। चलते चलते इसके पहले कि मैं आखिर में राकेश प्रजापति साहब के पास जाऊं, आपसे मैं जानना चाहता हूं सुशील व्यास जी, ये हो क्या रहा है? बिकॉज वी आर गेटिंग दिस, देयर आर रिपोर्ट्स ऑल ओवर द प्लेस, यू मस्ट हैव आल्सो रेड देम ऑफ कोर्स बिकॉज यू रीड एवरीथिंग। और एकनाथ शिंदे साहब को बहुत मंत्रियों ने जाके कंप्लेंट करी है कि अजीत दादा पवार के जो मंत्री हैं उनके साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। ये सब सामने खबरें आ रही हैं, क्या हो रहा है सर? ये व्हाट इज गोइंग ऑन? बजाज जी देखिए, ये जब आप गठबंधन की सरकार में सरकार चलाते हैं तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जो बंद कमरों में मंत्री परिषद के स्तर पर इनकी चर्चाएं होती है, इसीलिए बैठक होती है। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे चर्चा होती है। अब उसका जिक्र पब्लिक डोमेन में शायद नहीं हो पाएगा। मैं कोई बातें हैं जैसे रायगढ़, आप कहना चाहते हो रायगढ़ थाना, जी। नासिक, ठीक है, ये चर्चाएं हैं, और नहीं तो अन्यथा फैसला हो जाता। लेकिन हर दल चाहता है अपनों को बढ़ाना, हर दल चाहता है अपने दल को मजबूत बनाना, हर दल चाहता है अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना। गठबंधन की कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन गठबंधन के 4 दीवारी के भीतर कोई चर्चा करना कोई गलत नहीं है। हर दल जो गठबंधन में शामिल है, अगर कहीं न कहीं हमारे में थोड़े से भी वैचारिक मतभेद नहीं होते तो हम दल मर्ज कर लेते, अलग अलग दल लेके क्यों चलते। हम भी अपना दल मजबूत करना चाहते हैं, हम भी अपने कार्यकर्ता और नेताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे दल जो हमारे साथ में है वो भी वही प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मान लीजिए कोई मतभेद या कोई डिफरेंस जो ओपिनियन है उसको बहुत सुगमता। लेकिन एक चीज है सर, एक चीज है, एकनाथ शिंदे साहब और राकेश प्रजापति, ये सुनने वाली बात है। एकनाथ शिंदे साहब जिस प्रकार काम करते हैं, जो उनकी कार्यशैली है, बतौर मुख्यमंत्री की भूमिका में 2.5 साल के लिए और अभी भी उप मुख्यमंत्री की भूमिका में, सर मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं, उनसे बहुत असुरक्षित हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एकनाथ शिंदे साहब कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में? इस वजह से जान के अजीत दादा पवार को चाबी दी जा रही है कि किसी भी तरीके से इनको अंडरमाइन कीजिए प्लीज। बजाज साहब, मई 2024 के लोकसभा चुनाव के महाराष्ट्र के जो नतीजे थे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। ये तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो
जो सरकार ने जिस तरह से जन कल्याण के काम किए, महाराष्ट्र के कोने कोने में, या दिन हो रात हो, आधी रात के भी मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री पहुंचे, और जनता का विश्वास जो 23 नवंबर को रिजल्ट आया विधानसभा का, जो एक प्रचंड जिसने किसी ने सपने में नहीं सोचा था, 288 में से 238 सीट जीतने का काम शिंदे जी के नेतृत्व में हुआ। ये तो कोई छुपी बात नहीं है। तो ये शिंदे जी की कार्यशैली है कि वो जनता के बीच में रहते, क्योंकि हमारे संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के हर शिवसैनिक को यही सिखाया है कि आप राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में 80% अपना जीवन का जो समय है वो जन कार्य के लिए दीजिए, 20% समय मात्र राजनीतिक के उठापटक के लिए दीजिए। और वही शायद शिंदे जी के नेतृत्व में हमारे शिवसेना के कार्यकर्ता एक शिवसैनिक कर रहा है। इसीलिए लोकप्रियता हमको जनता के बीच मिल रही है, जनता का हमको प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, जिसकी परिणति 23 नवंबर को वर्तमान सरकार की मजबूती के रूप में आप देख रहे हैं। व्यास जी, ये ऑपरेशन टाइगर अभी भी है कि कभी खत्म होने वाले? यूबीटी तो टोटल खत्म हो चुके हैं, आपने खत्म कर दिया। अभी वो गिन चुन को चंद्रहार पाटिल जो सांगली से उद्धव जी ने इतने जी जान लड़ाकर उनसे लड़ा था, आज वो भी छोड़कर उदय सामंत जी उनको वापस यहां पर आपके पास लेके आ रहे हैं। तो ये क्या, जिस प्रकार से आप चल रहे हो ऑपरेशन टाइगर, यानी खत्म करने वाले आप यूबीटी को? ऐसा है कि जो जिंदा दिल होते हैं उनके साथ लोग चलते हैं, जो ऑफलाइन होते हैं ना उनके साथ कोई नहीं चलता है। जो जनता के बीच में दिखेगा, जो इंटरनेट के माध्यम से संवाद करने वालों के साथ कौन चलेगा? तो आप देख रहे हैं कि हमारा नेता का जो बंगला है, जो सरकारी निवास है मुक्तागिरी, उस बंगले का नाम है, जिसमें एकनाथ रावजी शिंदे ऑफिशियली अधिकृत रूप में उप मुख्यमंत्री के रूप में रह रहे हैं। वहाँ लगभग हर दिन अन्य विभिन्न दलों के राजनीतिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ और सामान्य आकर के स्वयं खुशी से हमारे शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। ये एक तरीका है, एक एक्सेप्टेबिलिटी है जिसको बजाज जी ने जिस बात का जिक्र किया, काम करने का तरीका है हमारे नेता एकनाथ राव शिंदे का, कि वो जनता के बीच में किस तरह से जुड़ाव उनका है। और ये ऑपरेशन टाइगर आपको नाम दे लीजिए, या हमारी दल की मजबूती दे लीजिए, या जो भटके हुए जो हमारे राजनीतिक अलग अलग पार्टी में है और उनको लग रहा है कि हमारा विपक्ष, हमारा भविष्य शिवसेना में शिंदे जी के नेतृत्व में ही मजबूत रह सकता है, तो वो आज आ रहे हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वंडरफुल। सो वेरी शॉर्टली वी विल सी आदित्य ठाकरे जॉइनिंग एकनाथ शिंदे। मतलब कहने का मतलब ये होने वाला है। I don't want even if he join that. Well, let me go across to राकेश प्रजापति। राकेश प्रजापति जी, चलते अब ये बताएं, जहां तक प्रजापति समाज का सवाल है, इसके मैं बार इस सवाल के ऊपर आता ही हूं। क्या है कि ये इन सब चीजों के अंदर जो प्रजापति समाज की जो खुद की तकलीफें हैं, जो उनके साथ वादे किए गए, जो उनके साथ एक कमिटमेंट की गई, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। तो सर अब क्या होने वाला है? ये जैसे आपने कहा कि 2027 के अंदर आपकी सरकार आने वाली है, क्या आप उस वक्त उम्मीद करते हैं कि प्रजापति समाज के साथ उस वक्त कुछ ना कुछ इंसाफ होगा? राकेश प्रजापति जी। देखिए, मैं जहां तक इस बात को कहूँ कि अनुसूचित जाति का मुद्दे को लेकर के जी, ये माननीय नेताजी, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि माननीय नेताजी ने भी हमेशा प्रयास किया कि प्रजापति समाज को, कुम्हार समाज को अनुसूचित जाति का लाभ मिल सके। अखिलेश यादव जी ने भी प्रयास किया, अपने मुख्यमंत्री काल में 2 बार प्रयास किया, लेकिन ये इसलिए नहीं हो पाता कि केंद्र में मदद नहीं मिल पाती उस समय पर, जब भी केंद्र में सरकार, राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, केंद्र में नहीं रही है। लेकिन वही मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस समय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। और मैंने राजनाथ सिंह का आपको एक पंपलेट भेजा था, जो हम लोगों ने 2009 में एक कार्यक्रम किया था, 15 फरवरी 2009 का। उसमें राजनाथ सिंह जी ने 3 मांगे हमने राजनाथ सिंह से मांगी थी। उस 3 मांगों में राजनाथ सिंह ने 4 मांगे हमारी, एक अपनी तरफ से और ऐड कर दी थी। पहली मांग थी कि भाई अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि जब तक हम विपक्ष में हैं तब तक हम आपकी सड़क से लेकर के सदन तक मांग उठाने का काम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह, कांग्रेस के किसी भी नेता ने आज तक लोकसभा में इस मुद्दे को नहीं उठाया, आज तक। दूसरी मांग ये थी कि जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। तीसरी मांग थी कि माटी कला बोर्ड का गठन किया जाए। मैं महाराष्ट्र में ही पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में भी माटी कला बोर्ड का गठन नहीं किया गया। ये प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, व्यास जी, ये बताएं क्यों नहीं करते भाई माटी कला बोर्ड का गठन, जब आपके अलायंस के, एनडीए के प्रमुख नेता ये कहते हैं। और चौथा, इन्होंने ये कहा था कि राष्ट्रीय माटी कला बोर्ड का गठन करेंगे।
अब बताइए, राजनाथ सिंह कोई छोटे मोटे तो व्यक्ति है नहीं, उस समय पर तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इस समय भी देखा जाए तो देश का तीसरा नंबर का पद उनके पास है, क्योंकि प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बाद तीसरा मंत्रालय होता है रक्षा मंत्रालय, जो उनके पास है। लेकिन आज तक 11 साल बीत जाने के बाद राष्ट्रीय माटी कला बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया गया? तो समाजवादी के आने से बस इतना है कि हाँ, समाजवादी के आने से हमें पट्टे देने का काम किया गया, नेताजी ने 17 जातियों की लड़ाई को हमेशा लड़ने का काम किया गया, और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम सबसे ज्यादा अगर प्रजापति समाज को किसी ने किया है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर राजनीतिक हिस्सेदारी दी है तो समाजवादी पार्टी ने दी है। कई बार कई मंत्री बनाए, कई एमएलसी बनाए, और दर्जा मंत्री देने का काम अगर सबसे ज्यादा किया गया है तो समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। Fantastic. All right, thank you, gentlemen. It's been a great pleasure as usual. And व्यास जी, I promise, जो प्रजापति जी आज की तारीख में जो कर रहे हैं सब कुछ, I'll forward it to you. Please do take a look. And Professor Rakesh Prajapati, we are really and truly proud of you and all that you're doing. Absolutely fantastic. Thank you, gentlemen. Jai Hind. Jai Hind. Oh well, he doesn't give up, does he? As far as Professor Rakesh Prajapati is concerned, It's an untiring, he is amazing. never-ending work. आप देखिए ना साहब, सिर्फ 47 साल की उम्र में क्या कितनी जबरदस्त अचीवमेंट है उनकी, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। और आप खुद देखें, दिल्ली के अंदर 2 लाख लोगों की सभा करना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सर, and he is good in everything. यस, पूरा अपनी is working hard पूरी for the जिंदगी अपनी छोड़ दी उसमें। समाज के लिए काम करना, खुद फिजिकली फिट रखना, फिर जी जबरदस्त सर, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड बिफोर वी गो, वी मस्ट वंस अगेन express our condolences to all those people who died in that stupid stampede in Bangalore. Put a real pall of gloom on what was an amazing and magnificent victory for the Royal Challengers Bangalore, especially Virat Kohli. Virat Kohli waited 18 years to be able to win the Indian Premier League title, and I think what happened in Bangalore today was unforgivable. जैसे प्रदीप जी ने कहा कि भाई वहाँ पे कोई पुलिस वाला दिख ही नहीं रहा फुटेज में, हम जान के आपको फुटेज नहीं दिखा रहे because we don't want to show you any disturbing footage anyway. It's depressing. Already life is so bad. I mean, why do you want to see this disturbing footage? And I would also request all the other channels, आप रोते हुए बिलखते हुए लोगों को ना दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा. I mean, it's stupid. सीधी सादी बात है, जहाँ तक के पुलिस का सवाल है, पुलिस बंदोबस्त का सवाल है, an inquiry must be held, especially with regard to क्या जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ऑब्वियसली मस्ट बी द आरसीबी and the Bangalore Cricket Association or the Karnataka Cricket Association, from whatever, I am only guessing here, alright, but Royal Challengers Bangalore would have to be involved after all, and the Chinnaswamy Stadium is under the Karnataka State Cricket Association, right? So that would have been made available to the RCB only by their permission. In effect, what is the kind of bandobast that they had asked for from the police? That's what we need to know. I think D.K. Shivakumar, he's also the Home Minister. In fact, he congratulated the team, and he was very well aware that this kind of event is happening. That's right. But he himself said, I will not blame my police. That's what he said. I saw that interview. I don't know how he can say that. सीधी सादी बात है साहब, अगर वहां पर उस गेट के ऊपर जहां पर स्टैम्पीड हुई, जैसा प्रदीप जी आपने कहा, 5 पुलिस वाले भी होते ना, वो कंट्रोल कर लेते क्राउड को, एक छोटा सा लाठीचार्ज करने की जरूरत थी, वो बोलते भाई साइड में हो जाओ, और the gates should have just been opened and everybody would have been allowed to go in one at a time. जगह तो थी वहां पे, ऐसा तो नहीं है कि पूरा स्टेडियम और पूरी की पूरी जो पिच जो है, बाकी सब चीजें जो है वो पूरी खचाखच भर गई थी, ऐसा तो नहीं है। लिहाजा, and thirdly, I still can't figure out what was the attraction for trying to get in at any cost. I still don't understand this. What could be the possible reason? Pradeep ji, do you have any guesses on that? It was people were mad about watching the players and they wanted to see them live. स्टेडियम में क्या दिख रहा है यार, टेलीविजन पे बैठ के देखो अपने घर में, ज्यादा अच्छा बल्कि एक का क्लोजअप दिखेगा। These kind of activities, I mean, you have examples where you saw this kind of stampede. The government should have been very, very obvious of the fact that we need to give proper protection out there, and especially around the gates. We found the people went frenzy. Usually लोग गाड़ी के ऊपर चढ़ के गेट को क्रॉस करने की कोशिश करो, पूरे गाड़ी in the process डैमेज कर दिया है। Hundreds of people. ज्यादातर
क्रिकेटिंग इवेंट में ऐसी स्टैम्पीड नहीं होती। ये तो ज़्यादातर रॉक शो में होती है या किसी रिलीजियस गैदरिंग में होती है। ज़्यादातर कोई धार्मिक गैदरिंग होती है, उसमें होती है स्टैम्पीड। जैसे अभी कुंभ में भी हुई थी, महाकुंभ में हुई थी, और उसके पहले भी एक कोई रिलीजियस फंक्शन था उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी हुई थी, बहुत लोग मर गए थे उसमें। कोई गुरुजी थे, कोई क्या, कोई देवर सम रिलीजियस लीडर, कोई धर्म गुरु कुछ प्रवचन कर रहे थे या क्या कर रहे थे, और देवर सम मिरेकल क्योर दैट वाज बीइंग हैंडेड आउट और समथिंग लाइक दैट। तो मेरा ये कहना है कि क्रिकेटिंग इवेंट में ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है, विच क्लियरली शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिकेट, हाउ मैड पीपल आर फॉर क्रिकेट इन इंडिया, एंड हाउ all these events need to be better organized. But 10 people have died. Somebody has to take responsibility. At least minimum 10 लोग की जाने गई। ये रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है वैसे। ये भी आपको बता दूं, पहले क्या था, लोग कह रहे थे कि सिर्फ 3 लोग मरे, उसके बाद 3 के 6 हो गए, 6 के 9 हो गए, और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 10 हो गए। हो सकता है कि शायद ये फिगर और भी बढ़ जाए, मुझे मालूम। But even one death is Terrible. I mean, you can't have any death. For what? किस लिए? और सबसे बड़ी बात है प्रदीप जी, खुशी का मौका है। Yes, yes, yes. खुशी के मौके पे आप उसके ऊपर घने बादलों का काम क्यों कर रहे हैं? हमें तो ये समझ नहीं It's a आ रहा। weekday. Weekday, on a weekday, if you're having this kind of a problem, then my goodness, there's no proper control at all, and of course you have to blame somebody. You can't say that, you have such a big event Yes. at short notice, and then you don't have the proper bandobast. And I agree with you over there, because they just won the cup yesterday. Maybe they could have waited for another 3-4 days. They could have had it on a Sunday, or they could have had it, after 3-4 days, after proper planning, etc., etc. एक ही दिन के अंदर वापस ये करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, मुझे समझ में नहीं आया। All these things will have to be investigated. Let's be very clear. और चलते चलते, I personally do not agree with Mr. Rahul Gandhi for the use of the term surrender Modi, because that's exactly what the Pakistanis are using, by the way. जो पाकिस्तान से जो भी चीज़ें फिल्टर आउट हो रही हैं, दे यूजिंग द टर्म सरेंडर मोदी, whereas it is the Pakistanis who have surrendered, और आप सरेंडर मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं। आई थिंक इट्स इन वेरी वेरी बैड टेस्ट। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू द कांग्रेस। And one nation, one husband. I mean, CMs talking this language. You got Gujarat CM talking that. You got UBT talking about that. Now, how can you have such talk on a national platform? Anyway, the fact remains that as far as we are concerned now, I hope the CDS actually comes out with more details. If we have hit 8 more stations in Pakistan, that's fantastic news indeed. Hitting Pakistan right up to Peshawar. Well, I cannot say that we actually did, because the DGMOs haven't confirmed it officially. अभी तक official statement नहीं आई है प्रदीप जी. It's only the news channels who are talking about some Pakistani dossier which has been leaked. But even if you believe the first part, that itself is fantastic. 9 terror pads have been hit. That itself, you're striking inside Pakistan, and you're striking it officially. You're telling them we have hit your terror pads, and then you saw the bodies, the army personnel along with the coffins of the terrorists. Respect that their image. dignity. That image itself should serve as a proper evidence victory for the rest of the world as to what exactly Pakistan is doing. Pakistan is a terrorist state, very clearly. And Masood Azhar has been given a compensation of 14 crores for the 14 members of his family who perished in that attack. So, what is going on over here? Do you need any more? Do you need any more evidence for this? I mean, come on. I mean, that's it. Anyway, Shashi Tharoor has landed in Washington. Let's see what they do over there. Very, very interesting. Because Bilawal Bhutto is also there, making a clown of himself as usual, making a fool of himself as usual, and there is also going to be Shashi Tharoor. So it'll be I mean, very interesting to Bilawal watch. Bhutto the right questions, as we were discussing. He said the Muslims are being demonized in India. In India, and one journalist just got up. We got Colonel Sofia Qureshi was addressing the press briefing out there. What more? What are you talking about? Yes, yes. So it is Muslim officers who are actually briefing everybody with regard to Operation Sindoor. So he didn't have a word. He didn't have any answer. So, or he's the same guy who said, "Na raat ke andhere mein koi hamla karta hai." What is all this here? Come on. This is so As stupid. Asaduddin Owaisi जिस प्रकार से कहा, they are jokers. Yes. They are fools, and really they are jokers and fools. Absolutely. And we were the only people, by the way, we are the only channel, by the way, that used to talk about Asaduddin Owaisi as a patriot. We said
He may be having a lot of differences with you, ये 3 साल पहले की बात है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी is a total Indian at heart and a very patriotic Indian. पहले दिन से हम लोग ये बोल रहे थे, उस वक्त बीजेपी वाले जो हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत बुरी तरह अटैक किया करते थे, और शायद दोबारा भी करेंगे when all this dies down and real politics starts on the ground. But then we were the only people who used to say, even at that time, listen to what he's saying. He's talking about obeying the law. Asduddin Owaisi is one guy who is stuck to one stand. We have the Constitution of India, let's stick to the Constitution. सीधी सादी बात है, संविधान के दायरे में हमें रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए. That's it. End of story. In any event, that's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. From both Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार. सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. चलिए से आपको यही बता दूं, द यूजुअल मैसेज, सब्सक्राइब और लाइक करें जरूर, अगर आपने लाइक किया तो. The fastest. डिसलाइक भी कर सकते हैं वैसे, कोई बड़ी बात नहीं है. Nation now the fastest growing channel in the nation. Subscribe to it. फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल. और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर भेजें, एंड दैट्स इट. विल सी यू अगेन टुमारो. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. जय हिंद, भारत माता की जय. Bharat Mata ki jai.